This is the QR code of the Telegram group. You can join the Telegram group for all the updates, class notes, etc. You can join this group. Okay, starting with the first question is write the IUPAC name of. We have to write the IUPAC name. So starting, we have to give least number to the site substituent, and we have to select the maximum carbon chain. So in order to give the least number to chlorine, we are numbering from right to left, 1 2 3. 1 we have chloro, so we'll write 1 chloro. This option is incorrect, this option is incorrect. 1 chloro, 1 chloro. And on the second position we have 2 methyl groups, so 2 comma 2 dimethyl. 2 dimethyl, wrong. So we have this as our answer, 1 chloro, 2 comma 2 dimethyl propane. Propane because we have 3 carbon chain, so propane. Okay, moving on to the next question. Halogenation of alkane gives, if we have alkane and if it undergoes halogenation, what we will get? We'll get a mixture of mono, di, tri and tetra halogen derivatives. We don't get a mono product. Okay, ऐसा नहीं होता कि आपको अकेला एक मोनो प्रोडक्ट मिल जाए, आपको एक मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट्स का. हाँ, सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है, परसेंटेज जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन आपको मिलता है एक मिक्सचर ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बाइलामीन टेस्ट. कार्बाइलामीन टेस्ट इन्वॉल्व्स प्राइमरी अमीन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये वाले एंड ये वाले जो है, ये वाला गलत हो जाएगा. देन इट इन्वॉल्व्स क्लोरोफॉर्म, so this is also incorrect, this is also incorrect. We have this as our answer, carbylamine test. Okay, next question, action of sodium on alkyl halide to form an alkane is called. For action of sodium we have two reactions. First is Wood's reaction and second reaction we have is Fittig reaction. Wood's reaction is for alkyl halides, Fittig is for aryl halides. What we do in these reactions, we take alkyl halide and we add sodium to it in the presence of dry ether, and it undergoes coupling to give a even number of carbons alkane. जो भी alkane मिलेगा उसमें even number of carbon atoms ही होंगे. ठीक है, तो the reaction is Woods coupling reaction. अगर क्वेश्चन ने पूछा होता Fittig reaction के बारे में, then it will mention here aryl halide. एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ये भी पढ़ी है कि वुड्स फिटिक क्या होती है. तो वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक एल्काइल एंड एक एराइल होता है उसके अंदर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा रैपिड फॉर्मेट में ठहरा है. ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CH3 जो है Cl से रिएक्शन हो रही है इसकी, और ये यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है. तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, वुड्स फिटिक नहीं होगी, वो इसकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कपलिंग की रिएक्शन है, तो ये नहीं होगी. Sandmeyer's reaction is also not the reaction because वो आपकी aryl halides की reaction होती है. Schwartz reaction is fluorine substituent की reaction. बची कौन सी, Friedel-Crafts reaction. ये कौन सी होती है, Friedel-Crafts reaction. Second chapter, alcohols, phenols and ethers. When acetaldehyde is reacted with Grignard reagent followed by hydrolysis, the product is, we have acetaldehyde here, and when it reacts with Grignard reagent is RMgX followed by hydrolysis. We know very well in the Grignard reagent the R group is negatively charged. Okay, so it will attack here, the bond will shift here. What we will get, we have CH3 here, C, OMG, Br, H and R. It will undergo hydrolysis, and in what manner it will undergo this, MgBr and OH will move together, and what we have here is CH, OH and R. So what is this? This is a secondary alcohol. So remember, in the reaction of acetaldehyde with Grignard reagent, we get secondary alcohol as our product. Okay, next question, alcohols can be formed from all methods except, सारे मेथड सिवाय किसके, सिवाय पूछ रहा है, इसने पूछा किससे बनता है, सिवाय किसके नहीं बनता. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन is used to form alcohol, so it won't be the answer. Oxymerization, demercuration, again the reaction to form alcohols, it won't be the answer.
Fermentation of starch, grain alcohol preparation, it also undergo reaction to give alcohol. So ये भी आंसर नहीं होगा. What is left is reduction of aldehyde ketones with zinc amalgam and HCl. The reaction is known as Clemmensen reduction reaction and is used to prepare alkanes from aldehydes and ketones, not alcohols. Okay, the reaction is used to form alkanes and not alcohols. Remember, keep that in mind. Phenol is heated with chloroform and alcoholic UH. When salicylaldehyde is produced, this reaction is known as, this is a name reaction, and the name of the reaction is Riemann-Tiemann reaction. A similar reaction takes place when phenol reacts with carbon tetrachloride and the product form is salicylic acid. But the reaction is not Riemann-Tiemann reaction. So in the exam, if it is asked to write a short note on Riemann-Tiemann reaction, please mention the reaction of phenol with chloroform and alcoholic UH to give salicylaldehyde. You have to write this reaction only in order to fetch marks for Riemann-Tiemann reaction. Please keep that in mind. If you write the reaction for CCl4 and to give salicylic acid, you won't get any marks. Okay, so the reaction is Riemann-Tiemann reaction, and what we use here is carbene. What we use here is carbene. Okay, Rosenmund reduction, again it is a reaction of acid chloride to give aldehyde. Friedel-Crafts reaction, already explained. Kolbe's reaction, reaction to prepare alkanes. Okay, next reaction, the compound which gives a positive haloform test. We know already haloform test is used to detect methyl ketones in a compound, and a positive Fehling test. Fehling test is used for aldehydes detection. So there are some aldehydes that have methyl ketone group present in them. Okay, suppose acetone. Acetone will give positive haloform test. Yes, it will give. It has a methyl ketone group. Methyl ketone group is this group. It has a methyl ketone group, so it will give positive haloform test, but it won't give a positive Fehling test because it is not an aldehyde. It is a ketone, and Fehling test is for aldehydes and not ketones. So it won't give positive Fehling test. Again, you have to remember what is the composition of a given reagent. Suppose it is Tollens reagent. So what is the Tollens reagent Fehling test? So you have to know what is Fehling's solution, Fehling A and Fehling B. Then we have Brady's reagent, we have Hinsberg reagent, Lucas reagent. You have to remember what is the composition of the given reagent. In the exam, it can be asked in an objective question, or maybe in the assertion and reason questions. Okay, so positive acetaldehyde. Acetaldehyde has methyl ketone group and it is also an aldehyde. So our answer is acetaldehyde. Formaldehyde doesn't have our methyl ketone group. Formaldehyde is this. It is an aldehyde, but it doesn't have methyl ketone. So this is not the answer, and diethyl ether can't be the answer because it is not a aldehyde or ketone. It is not a carbonyl compound, in fact. Okay. Next question, benzaldehyde when heated with an alcoholic solution of potassium cyanide forms. The reaction is a standard reaction and the name of the reaction is benzoin condensation. So I have to remember these reactions. There are total 37 reactions in your syllabus. I have, I think 15 days back I took a class. It was name reactions in one shot, I think so. In the description, a playlist is given for organic chemistry. It is a 1-hour class where I have covered each and every name reaction. If you want to cover the name reactions portion, you can watch the video. Link is in the description box. Okay. So the product form is benzoin. We have Perkin reaction, we have Cannizzaro, aldol, and the several other reactions in the video you can watch. We have here carbonyl compound and it is giving a alkane. कौन सी reaction होती है ये? It's Clemmensen reduction. Yes, it is possible through Clemmensen reduction. Wohlkirchner, yes, it is possible through Wohlkirchner. HI red phosphorus, yes, it is possible through HI and red phosphorus, but उसने पूछा है cannot be used. Cannot be used is Woods reaction. Woods reaction से हमारा alkane तो बनता है, लेकिन किससे बनता है? It is from through alkyl halides.
Okay, and not through carbonyl compounds. So answer will be Wood's reaction. Next reaction, again this is standard name reaction. COCl H2 PdSO4 gives aldehyde. This reaction is known as Rosenman reduction, and this is known as, what is this? This is a reagent used in Rosenman reduction, और यहाँ पे मेंशन नहीं है PdBSO4 in boiling xylene और quinoline. ये भी लिखना पड़ेगा अगर नेम रिएक्शन आएगी आपको लिखने को, ठीक है. Steinbeck reaction, halides preparation, HVZ reaction, carboxylic acid, Cannizzaro reaction, disproportionation reaction. तो आंसर हो जाएगा Rosenman reaction. Acetaldehyde कैन नॉट शो. एसिटिल्डिहाइड क्या नहीं शो कर सकता? आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल दिखा सकता है वो, अभी अभी दिखाया हमने. ल्यूकास टेस्ट, हाँ ये ल्यूकास टेस्ट नहीं दिखाएगा. क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज ल्यूकास टेस्ट इज फॉर अल्कोहल्स एंड नॉट एल्डिहाइड्स. बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का होता है, तो ये दिखाएगा. टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स का होता है, तो ये भी दिखाएगा वो. तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा. आंसर इज ल्यूकास टेस्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, उसने बोला नॉट, कौन नहीं देता. पेंटेन टू ओन, तो पेंटेन टू ओन में इस तरीके से हो जाएगा, तो ये मिथाइल कीटोन है, ये टेस्ट देगा, ठीक है. इथेनॉल, इथेनॉल किस तरह से हो जाएगा? इथेनॉल इस तरह से हो जाएगा, अगेन ये मिथाइल कीटोन है, ये टेस्ट देगा. इथेनॉल भी टेस्ट दे देता है ड्यू टू कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. ये बात याद रखना. क्या बच्चा? पेंटेन 3 ओन बच गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज. एंड प्रोडक्ट पूछा है हमारे को इस रिएक्शन का. इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पर ना ये नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे ये है, ये है, ठीक है. ये करेक्शन कर लेना इसके अंदर. एक मिनट को लो, मैं कर ही देता हूँ करेक्शन. लो, ये हो गया करेक्शन, ठीक है. अब करो सॉल्व इसे. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ये जो होती है हमारी, ये क्या है हमारी? एसिटिलीन है. HgSO4, HgSO4 से क्या बनता है हमारा? ये बनता है. एक्चुअली ये जो होती है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद बनता है ये प्रोडक्ट. मैंने फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली बना दिया, ये फाइनल प्रोडक्ट है. इसमें क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है. एसिटाल्डिहाइड के संग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनता है? बी क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा. अच्छा यहाँ पर H2O नहीं लिखा हुआ है, H2O भी लिख लेना, ठीक है ना. फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है ये प्रोडक्ट. CH3 CHOH, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3. ये प्रोडक्ट बन जाएगा. अब बी ये बन गया. बी के बाद वो बोल रहा है इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें पता है कि अगर जब भी ऑक्सीडेशन करी जाती है सेकेंडरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, सपोज करो यहाँ पर PCC गिवन है, अगर पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC गिवन है और इसकी अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करी माइल्ड, तो ये बदल जाता है कीटोन के अंदर. सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन के बाद, और हमारे को जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ये मिलेगा. क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है. यहाँ पर H2O जो है अज्यूम करना, और यहाँ पर PCC, ठीक है. अगर ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि माइल्ड ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है. कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये मतलब मैं बोलूंगा इसे, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का भी नहीं, जेई लेवल का क्वेश्चन है. कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन साइनाइड के संग साइना हाइड्रोजन दे देता है. हमारे को पता है अपना कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह से हमारा इस तरीके से है, या तो यहाँ पे H होगा या यहाँ पे दोबारा एक R डैश हो जाएगा. अगर इसने रिएक्शन करी, किसके साथ कर रहा है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. अगर इसने HCN के संग रिएक्शन करी
KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, साइनोहाइड्रिन देता है। साइनोहाइड्रिन क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा साइनोहाइड्रिन OH CN, और यहाँ R डैश हो जाएगा या फिर H हो जाएगा, यही होता है। ये क्या होता है, साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन है। अब उसने कहा कि इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी। अगर मैंने साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या होगा, ये जो साइनाइड ग्रुप है ये COH में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है, ये अगर COH है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, इसमें बनेगा एक मिक्सचर। कैसे बनेगा, सपोज करो ये यहाँ H या R डैश है, और ये यहाँ पर आपका R जो ग्रुप है वो हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है इस तरीके से। अगर OH राइट में है तो एक तरफ OH लेफ्ट में बन सकता है, OH लेफ्ट में हो, यहाँ H या R डैश जो भी था वो, यहाँ R, और यहाँ COOH। दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, डी प्रोडक्ट, इसे क्या कहेंगे, L, डी फॉर्म और एल फॉर्म, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसने कहा रेसिमिक मिक्सचर बनना है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब क्या है, ये जो लगे हुए हैं ये सेम पोजीशन पर लगे हुए हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है एसिड के, ये एसिड है, एसिड है, और इसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। और ये सॉरी, ये नहीं, ये हाइड्रोक्सी थोड़ी है, ये हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब उसने क्या बोला कि ये रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एक जो होता है इक्वल और ऑपोजिट हो, एक फॉर्म प्लस फॉर्म हो, एक माइनस हो, एक डी हो, एल हो, पर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं वो तो देख लो पहले। अगर हम लोग दो R और R डैश लगा दें, और वो कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड के संग साइनोहाइड्रिन दी, और हाइड्रोलिसिस करके रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है वो हमारे को। तो अगर वो मिक्सचर R और R का होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा, तो दो कार्बन की वैलेंसी सेम हो गई ना, तो इसमें क्या होगा, ये R डैश नहीं होगा, R डैश नहीं हो सकता। ये इससे हमारे को पता चलता है। क्यों पता चलता है, अभी और क्लैरिटी कर देता हूं मैं। ऑप्शंस को चेक करो पहले, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, पहले उन्हें ऑप्शंस को चेक करो। देखो ये वाली पोजीशन है जिस पोजीशन पर चेंज आ रहा है सारा, इसे मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये वाली पोजीशन है सारी जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली है। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया, HCHO हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा ही नहीं, डी और एल्फेन का सवाल ही नहीं होता इसमें, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एसीटोन है, CH3 और CH3 दोनों CH3 हो जाते तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनता, इसका भी सवाल नहीं उठता। डाइएथाइल कीटोन है, डाइएथाइल कीटोन में भी क्या हो जाता, C2H5 C2H5 हो जाते, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनता। बचा क्या, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जो होता है हमारा वो रेसिमिक मिक्सचर दे देगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। HVZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, HVZ रिएक्शन हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी है। अगर हम लोग HVZ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें अल्फा हैलो एसिड बन जाता है, ठीक है ना, ClCH2COH अल्फा हैलो एसिड बन जाता है, यानी COH ग्रुप लगा है तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, अल्फा पोजीशन पर हैलोजन लगा हुआ है तो अल्फा हैलो एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। एनालिन को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक पोटाश के संग रिएक्शन की है तो क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन जो होती है स्टैंडर्ड रिएक्शन है, फिनोल एसोसाइड बन जाएगा इसमें। बेसिक हाइड्रोलिसिस एल्काइल साइनाइड की, एल्काइल साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल्स पर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी क्या कर देती है, डेफिशिएंसी विटामिन बी की, जल्दी बताओ, डेफिशिएंसी विटामिन बी की क्या कर जाती है, क्या कर जाती है, रिकेट्स। गाउट किससे होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी किससे होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस किससे होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of aldohexose,
एल्डो हेक्सोस का क्या एग्जांपल है? एल्डो मतलब उसमें एल्डिहाइड हो, हेक्सोस मतलब उसमें 6 कार्बन हो, राइबोस हो नहीं सकता, फ्रक्टोज जो होता है वो क्या कहते हैं कीटोस है, सुक्रोज हो नहीं सकता, क्या आंसर है ग्लूकोज। ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या कौन होल्ड करता है? अमीनो एसिड्स में होते हैं पेप्टाइड लिंकेजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे जो न्यूक्लियर जो हमारे बेसिस होते हैं उसमें होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, आयनिक लिंकेज हमारी ऐसी कुछ होती नहीं है, पेप्टाइड लिंकेज हमारी होती है इसके अंदर। अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये करा था वाटसन और क्रिक ने अपने एक मॉडल से, जैसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स मॉडल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरह से हीलिक्स होती है, लेफ्ट हैंड हीलिक्स और राइट हैंड हीलिक्स। इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे बेसिस अरेंज्ड होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। नॉट कौन नहीं होता डीएनए में? तो हमें पता है डीएनए में कौन होता है, एटीजीसी होता है। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या नहीं होता? यूरासिल नहीं होता। यूरासिल किस में होता है? यूरासिल होता है आरएनए में। ठीक है। कौन सा अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता? एक अकेला मात्र अमीनो एसिड जो हमारे को मिलता है और जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या हो जाएगा? NH2 CH2 COH, ये होता है ग्लाइसिन और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। कौन सा प्यूरिन बेसिस है? इसमें तो प्यूरिन कौन सी है बताओ? एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन कौन सी है इसमें से बताओ? कौन सी है? एडेनिन। ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी कर ली थी। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। आरएनए में क्या नहीं होता? आरएनए में क्या होता है? पहली बात तो ये, आरएनए में AUGC होता है, क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? थाइमीन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ये थोड़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि mRNA के मॉलिक्यूल में अगर हमारा ये वाला स्ट्रैंड है तो ये वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? अगर डीएनए में होता है तो डीएनए में क्या हो जाता है? ATGC, ये हो जाता है, AT में चेंज हो जाता है, GC में चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर उसने mRNA पूछा है तो mRNA में क्या होगा? G तो C में चेंज हो जाएगा। mRNA में क्या होता है? AUGC, तो G किस में चेंज हो जाएगा? C में। C किस में चेंज हो जाएगा? G में। A किस में चेंज हो जाएगा? U में। T किस में चेंज हो जाएगा? A में। A किस में चेंज हो जाएगा? U में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CGUAU, ये हो जाएगा इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। नेक्स्ट देख लो, हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अभी बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ATGC में। ठीक है। बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर नए हो तो बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।